जी इसका The concept of sustainable development was formally defined in the report titled Our Common Future. This report was an outcome of deliberation of a group constituted by Commission on Environment and Development (WCED) and chaired by the then Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland. Brundtland Commission defined sustainable development as the development that involves meeting the need of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The definition of sustainable development initiated a lot of debate. The scientists were of the opinion that the term need and development has not been defined properly in the report. Need cannot be generalized universally. It varies from place to place and person to person. Similarly, development was also not properly defined. The report explains development as something people do not improve their lives. Therefore, it becomes amenable to varied interpretations. A more precise definition with clearly spelled out goals remains elusive. Herman Delay and ecological economists refer to यस sustainable पलक development. जी यहाँ तक पढ़ लिया ना आपने इस पैराग्राफ को? Yes, sir, I can read. Yes, now if Priyanshi can explain this, okay? Yes, Priyanshi. Good morning, sir. Good morning. The concept of sustainable development was formally defined in the report titled Our Common Future. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमें डिफाइन किया गया है आर कॉमन फ्यूचर के नाम से. दिस रिपोर्ट वाज एन आउटकम ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट. जो ये रिपोर्ट है जो इसका आउटकम है ये एक आउटकम है ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट. जो ये रिपोर्ट है ये जो आउटकम है ये एक डेलिब्रेशन ग्रुप का जब हमें ग्रुप बनाया गया था constituted by the World Commission on Environment. World Commission on Environment ने ये रिपोर्ट बनाई थी एंड डेवलपमेंट एंड चेयर्ड बाय देन नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर. और जो ये क्या बोलते हैं कमीशन था ये किसने चेयर किया था? नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड ने. Brundtland Commission defined sustainable development as the development that involves. जो Brundtland Commission थे उन्होंने sustainable development को evolve किया था meeting the need of present generation without compromising the ability of future generation. मतलब इसमें हम क्या करते हैं प्रेजेंट जो जनरेशन होती है उनकी जो नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट उनकी जो नीड है वो पूरी करनी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. जो फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी उनको बिना कॉम्प्रोमाइज किए टू मीट देयर ओन नीड जो उनके नीड्स है उनको पूरा करने के लिए. दिस डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ डिबेट. जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है इसमें बहुत डिबेट किया गया था. The scientists were of the opinion that the term need and development has not been defined properly in the report. जो scientists थे उनका ये opinion था कि जो term need है जो नीड हमने डेफिनेशन में यूज किया है और जो डेवलपमेंट हम वर्ड जो डेफिनेशन में यूज किया है वो उसको रिपोर्ट में प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपरली बताया नहीं गया है. नीड कैन नॉट बी जनरलाइज यूनिवर्सली. वो कहते हैं कि जो नीड है जो नीड टर्म है उसको हम यूनिवर्सली जनरलाइज नहीं कर सकते. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन. जो नीड है वो वेरी करता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि अलग अलग पर्सन के अलग अलग नीड होते हैं. सिमिलरली डेवलपमेंट वाज आल्सो नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. और वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है.
The report explains development as something people do to improve their lives. वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट में डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया गया है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों की जो लाइव्स है वो इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है. Therefore, it becomes amenable to varied interpretation. वो बोलते हैं कि इसीलिए जो ये जो डेफिनेशन है क्या बन गई, एमिनिएबल बन गई है इंटरप्रिटेशन को वेरी करने के लिए. A more precise definition with clearly spelled out goals remains elusive. जो more precise जो इसकी definition है वो clearly spelled out वो goals को बहुत अच्छे से दिखाती है हमें. सर हो गया जी, थैंक यू सर. आज स्लोली थी मतलब ठीक था. जी. हाँ जी सर आज स्लो था ना. जी जी. बस यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट को ये लगा होगा कि मीटिंग द नीड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नीड्स मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल करना है और फ्यूचर्स की एबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है. ठीक है. तो जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो मैं बता दूं उनको, जैसे अभी की मेरी नीड्स है, मेरे को वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जितने भी सब चीज चाहिए, लेकिन फ्यूचर की जो लोग होंगे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल हम अभी 21 जनवरी के वो हैं, लेकिन हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने यमुना को इतना पोल्यूट कर दिया, हम यमुना के पास जाते हैं तो हम नाक पे, मुंह पे, फेस पे अपना हाथ रख लेते हैं. या फिर और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा है. तो ऐसा नहीं करना. यमुना पहले बहुत अच्छी रिवर थी और इतना ज्यादा नगर बसा होता है, जितने हरियाणा से लेकर के जो दिल्ली, हरियाणा, ताजमहल और जहाँ तक पूरा बहुत ब्यूटीफुल था ये. बट आज आप देख नहीं पाएंगे, मतलब पास नहीं जा पाएंगे, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है. और नाले से भी खतरनाक चीज लगती है बिल्कुल. हर जगह से फैक्ट्रियों का है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो अब वो बिल्कुल गंदा लगता है. उसके अंदर डेड बॉडीज भी हैं, जान एनिमल्स को, कुत्ता बिल्ली मर जाए तो उसमें फेंक दिया कुछ, हर चीज बहुत गंदा है वो. तो ठीक है, आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हैं प्रेजेंट जनरेशन, लेकिन फ्यूचर के लिए भी तो एक अच्छा चीज आप देख के जाइए, टू मीट देयर ओन नीड्स. ये था यहाँ पर. अब हम नेक्स्ट के लिए बुलाते हैं. आप में से स्टूडेंट हैंड रेज कर सकते हैं. पलक जी के अलावा एनी स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे रीड करने के लिए. यस पूजा जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ये आपको पैरा समझ में आया होगा ना. यस सर. जी. जी पूजा जी. करे रीड सर. जी जी. On the other hand, sustainability is the capacity of and the word sustainability is derived from the Latin. Sorry to interrupt. ये ऊपर पैराग्राफ पढ़ा आपने, ये वाला यहाँ से द डिफाइन से पढ़ना है. द हरमन डेली. जी. यस सर. जी पढ़िए. सर कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर. जी हाँ, यहाँ से रीड कीजिए. Herman Daly, an ecological economist, referred to sustainable development as an oxymoron. Do you know what an oxymoron is? Oxymoron is a figure of speech that combines two usually contradictory terms into a compressed paradox. Example: bitter, sweet, pretty, ugly. The definition of development is not precise enough to make it more in flavor of nature conversation than on building roads, factories, infrastructure, etc. The Oxford Dictionary meanings of development is a stage of advancement. On the other hand, sustainability is the capacity of endure. The word sustainability is derived from the Latin sustainer. Tenor equals to hold, sus equals to up. Dictionary provide more than 10 meanings
for sustain, the main aims being to maintain, support, or endure. Furthermore, as has been pointed out by Michael Radcliffe, the sustainability discussed has gradually, over the year, moved almost imperceptibly away from human needs to human rights. There, therefore, sustainability refers to a process which can be continued indefinitely without depleting the resource base on which it depends. Therefore, it is practically goal towards which our interaction with the natural world should be directed. The guiding principle of sustainability cut across ecologically, economic, social, and cultural dimension. Yes. Yes, प्रियांशी जी. Yes, sir. जी. Herman Daly, an ecological economist, referred to sustainable development as an oxymoron. जो हरमन डेली थे वो एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ ऑक्सीमोरोन रेफर किया था. डू यू नो व्हाट एन ऑक्सीमोरोन इज? क्या तुम जानते हो ऑक्सीमोरोन क्या है? Oxymoron is a figure of speech that combines two usually contradictory terms. Oxymoron एक figure of speech है, मतलब उसमें हम उसमें हम सर कैसे समझाऊं मैं? ऑक्सीमोरन जैसे सर इंग्लिश की पोएम होती है तो उसमें हम सर ऑक्सीमोरन यूज करते हैं. उसमें हम कंबाइन करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म होती है जो एक साथ यूज की जाती है, उनको यूज करते हैं ऑक्सीमोरन में इनटू अ कंप्रेस पैराडॉक्स. उनको कंप्रेस करने के लिए, जैसे बिटर स्वीट प्रिटी अगली, दोनों अलग अलग टर्म है, अपोजिट अपोजिट, तो उनको दोनों को एक साथ कंबाइन करना, उसको ऑक्सीमोरन, वहां पर हम ऑक्सीमोरन यूज करते हैं. The definition of development is not precise enough to make it more in favor of nature. जो development की definition है वो बिल्कुल precise नहीं है हमें nature को favor करने में, nature conservation को favor करने में, than on building roads, factories, infrastructure, etc. वो favor नहीं करती है roads को build करने में, factories और infrastructure को build करने में. The Oxford Dictionary meaning of development is a stage or advancement. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो है एक स्टेज या तो कोई एडवांसमेंट, आगे मतलब एडवांस कुछ करना. ऑन दी अदर हैंड सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू एंड्योर. दूसरे हाथ पे जो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है वो है कैपेसिटी टू एंड्योर. उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए एंड्योर करने की. द वर्ड सस्टेनेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन सस्टेनियर. जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी है ये किससे डिराइव किया गया? सस्टेनर से डिराइव किया गया है. टेनियर का मतलब होता है टू होल्ड, पकड़ कर रखना. सस का मतलब होता है अप, ऊपर. डिक्शनरीज प्रोवाइड मोर देन 10 मीनिंग्स फॉर सस्टेन. जो डिक्शनरी है वो सस्टेन की 10 मीनिंग बताती है, 10 मीनिंग प्रोवाइड करवाती है हमें. द मेन वंस बीइंग टू मेंटेन, सपोर्ट और एंड्योर. जो मेन है उसमें मीनिंग वो ये है, मेंटेन, सपोर्ट और एंड्योर. ये तीन जो मतलब मीनिंग है ये इंपॉर्टेंट है. Furthermore, as has been pointed out by Michael Radcliffe, the sustainability discussion, आगे चलकर जब माइकल रेडक्लिफ के द्वारा ये सस्टेनेबिलिटी डिस्कशन को पॉइंट आउट किया गया था, has gradually over the years moved almost imperceptibly away from human needs. जो भी डिस्कशन किया गया था जो ये बहुत सालों तक चला, moved almost interceptibly away from human needs, और ये ह्यूमन नीड्स के अवे चला गया, मतलब इंटरसेप्टेबली ह्यूमन नीड से अलग हो गया टू ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन नीड से चेंज होके वो ह्यूमन राइट्स पे चला गया. Therefore, sustainability refers to a process which can be continued indefinitely without depleting. इसीलिए जो sustainable को रेफर किया गया है वो एक प्रोसेस रेफर किया गया है जो कंटिन्यू करता है indefinitely without depleting the resource. हम रिसोर्सेस को बिना डिप्लीट किए, बिना हटाए, बिना कम किए, बेस ऑन विच इट डिपेंड्स, और उसके बेस पे ही डिपेंड है. देयरफॉर इट इज द प्रैक्टिकल गोल टुवर्ड्स विच आर इंटरैक्शन. इसलिए ये एक प्रैक्टिकल गोल है टुवर्ड्स विच आर इंटरैक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड शुड बी डायरेक्टेड. नेचुरल वर्ल्ड की तरफ एक इंटरैक्शन है जो कि बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए.
The guiding principles of sustainability cut across ecological, economic, social and cultural dimension. जो sustainability के principle है जो हमें guide करते हैं वो है ecological, economic, social and cultural dimensions. जी, तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कट अक्रॉस का मतलब इकोलॉजिकल जो इकोनॉमिकल सिस्टम है हमारा, इकोनॉमी है, सोशल है एंड कल्चरल है। तो ये सारे एस्पेक्ट किसके अराउंड है? हम डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं अपने सोशल के लिए, सोशल तो हम सारे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, ये कॉन्ट्राडिक्ट में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपोजिट वर्ड बोलना, जैसे स्वीट एंड बिटर, प्रिटी, अगली, दोनों एक साथ यूज करना, ऐसी बातें हैं। तो इस कहीं लोगों ने इसको क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर इन्होंने बोला ये तो ऑक्सीमोरोन की तरह है, यानी कि आप सस्टेनेबल सॉरी यहाँ पे अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप ऐसी डेफिनेशन दीजिए जो थोड़ा सा, इन्होंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या था कि हमने प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करनी है और फ्यूचर की जनरेशन की एबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो फिर हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो जब आप डेवलपमेंट वर्ड यूज कर रहे हो तो इसकी मीनिंग कहीं पे लिखा है एडवांसमेंट, कैसे हम आगे एडवांस होते चाहें। तो डेवलपमेंट का मतलब है जो हम अभी तक कर रहे थे उससे आगे कुछ और इम्प्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं छोटे घर में रहता हूँ तो थोड़ा बड़ा घर हो, ऑब्वियसली जब बड़ा घर होगा तो उसमें सीमेंट, ईट और ब्रिक्स जो कहते हैं आयरन वायरन वुड्स, पेड़ पौधे कटेंगे ना, ऑब्वियसली लकड़ी लगेंगी, फर्नीचर आएगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। या फिर एजुकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ बेंच ज्यादा बनेंगे, नंबर ऑफ विंडो हाउसेस ज्यादा बनेंगे, स्कूल स्टूडेंट जिससे बढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें, डेवलपमेंट मतलब है कि रिसोर्स का कंज्यूम तो होगा, ठीक है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, रिसोर्सेज तो यूज होंगे। अगर डेवलपमेंट विदाउट रिसोर्स को हम डिप्लीट किए हुए, यहाँ पे जैसे वर्ड है कि रिसोर्स को कम से कम रिसोर्स को हम कहा था, एक वर्ड था ना कि हम डिप्लीट ना करें और अवॉइड करें कंप्लीटली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनडेफिनेटली विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्स बेस ऑन विच द डिपेंड्स। तो कंटिन्यूड हम इसको इनडेफिनेटली तक हम इसको यूज करते रहेंगे। सस्टेनेबिलिटी रेफर टू द प्रोसेस व्हिच कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट, इसका मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी, इन्होंने देखो इसमें अलग अलग मीनिंग निकाली है इन्होंने। सस्टेनेबिलिटी एक राइट है हमारा, जो हम आगे ग्रो कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, लेकिन इसमें हम कंटिन्यू ग्रो तो होंगे, हम हर दिन अपना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिसोर्स को भी किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो। तो ये पूरा ओवरऑल आप सस्टेनेबिलिटी के अराउंड घूम रहे होगे कि जिसमें इसकी मीनिंग वगैरह बताई जा रही है। आप में से कोई और स्टूडेंट फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहता है तो यस प्लीज, मे बी यू हैव मोर वर्ड्स देन आवर्स, हमसे कुछ अच्छे वर्ड्स भी आ सकते हैं आपके पास। यस कशिश जी, आप अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं या कोई, तो ये इसके मीनिंग है। सस्टेनेबिलिटी मींस आप प्रेजेंट नीड्स को कंप्लीट कर रहे हो और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। तो ये तो सिंपल मीनिंग हो गई, बट इसमें और ऑक्सीमोरन वगैरह अलग अलग जैसे बताया था रेडक्लिफ, माइकल रेडक्लिफ ने भी, और आगे ग्रेजुअली इसको ओवर द ईयर जैसे पीरियड डेवलपमेंट होते गए तो आगे लोग उसको, अच्छा ये क्यों होता है ऐसा ही पॉलिटिकल डिबेट वगैरह क्यों, जैसे इसमें आए थे काफी सारे डिबेट वगैरह होते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि जब वर्ल्ड लेवल पे जब ये डिस्कशन पैनल बनता है ना तो फिर लॉज इसी के ऊपर फॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें या सुन पा रहे हैं कशिश जी? यस सर, यस सर। आप कुछ और वर्ड्स और कुछ इसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं? अभी तो नहीं सर, मैं देख ही रही हूँ, समझ रही हूँ। ठीक है ठीक है, आप इमीडिएट कभी भी कुछ और भी हो सकता है, वी आर नॉट एबल टू मोर क्लियरली डिफाइन, देन यू कैन ऐड योर वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो ये डिस्कशन में थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बता रहा हूँ। ऐसा होता है सबसे पहले ना डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। और नॉर्मली होता क्या है, सबसे पहले डिस्कशन होता है, फिर होता है लॉ बनता है किसी के ऊपर, या कोई किसी को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए की जाती हैं सारी चीजें। तो डिस्कशन करने के बाद क्या होता है, एक्चुअली किसी पे कंट्रोल किया जाना या किसी को ज्यादा जब ग्रोथ कर रहा होता है तो फिर उसको मैनेज करने के लिए की जाती है। जब भी डिस्कशन की जाती है, मॉनिटर किया जाता है, तो किसी के इंटरेस्ट जो है उस पे, किसी का इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन को रोकते हैं तो फिर उनका इंटरेस्ट उस पर इम्पैक्ट होता है। जब हम नोएडा वगैरह में बात कर रहे थे कि फैक्ट्री का बात कर रहे थे तो कितने हजारों जो बिजनेसमैन थे तो उनका इम्पैक्ट हुआ होगा। बता सकते हैं आप में से किसी को ऐसे केस स्टडी पता है कुछ?
यस पूजा जी या प्रियांशी जी आपको पता हो तो जब दिल्ली से बहुत सारे फैक्ट्रीज को बाहर किया गया क्योंकि तो रेजिडेंशियल एरिया है और जितने भी पॉल्यूशन वाले हैं आप ओखला नोएडा गाजियाबाद गुड़गांव कहीं चले जाओ बस दिल्ली के जो हाई रिहायशी एरिया है वहां से हट जाओ ठीक है तो जितने भी ऐसे फैक्ट्री थे उनको दिल्ली से बाहर किया गया या अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को हम रेजिडेंशियल एरिया में ना करके उसको आउट रिमोट एरिया में करते हैं रिमोट एरिया रेजिडेंशियल एरिया में थोड़ा डिफरेंस होता है ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया को अलग से बनाया जाता है जहाँ पे पोल्यूशन ना के बराबर हो मतलब सॉरी रहने वाले लोग ना के बराबर हो ठीक है तो इस तरीके से चीजें की जाती है तो पहले डिस्कशन का पार्ट बनता है फिर यूनाइटेड नेशंस में बनता है फिर वहाँ पे पॉलिसी कमेटी बनती है आपने सुना होगा हर एक चीज की जैसे कॉप की कमेटी बनी थी है ना Yes, sir. जी और CFA ये भी बनाता है CFA तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस WHO तो आपको पता ही है तो टॉप मोस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इस तरीके की चीजें आती हैं फिर इसके नीचे सब कमेटी बनती है और फिर वो आगे क्या करते हैं कानून लॉ पास करवाते हैं अलग अलग कंट्रीज से तो ऐसा हो तो फिर क्या होगा नुकसान होगा नहीं होगा Yes, sir. उनका इंटरेस्ट हार्म होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अभी मैं जूम पे क्लास कर रहा हूँ ठीक है अब इसी के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट करे देखो जूम पे क्लास करने से इतना हार्म होता है हमारी आई साइट वीक हो रही है बच्चों की और कंटिन्यूस मोबाइल को भी देख रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आ रही है इतनी मतलब डिबेट का इशू बन जाए और मैं कहूँ नहीं मैं कहूँ उसके बेनिफिट को गिनाऊं कि नहीं अगर आप थोड़ा सा मुझे आई नो कि आई इम्पैक्ट होती है आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पे देखते हो और सबके मोबाइल की स्क्रीन लाइट का पता नहीं तो इतने सारी चीजों को एक डिबेट बन जाती है तो मेरा अपना इंटरेस्ट ये है कि मैं कंटिन्यू करूँ अपनी क्लासेस को बट काफी सारे जो इन्वायरमेंटल वाले होंगे या इन्वायरमेंट जो होते हैं ना एनजीओ या फिर कुछ ऐसे लोग वो कहेंगे नहीं आपको फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए इसको हमें क्लोज करना चाहिए तो दोनों के बीच में एक डिबेट हो जाएगा राइट Yes, sir. तो Yes, sir. एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में आप नॉर्मली आप लोग सबके माइंड में ये आ सकता है कौन इसका अपोज कौन कर रहा है इसका नॉर्मल आता है ना जब हम बात करते हैं ये सब चीजें नहीं करनी अपोज कौन कर रहा है तो अपोज करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग होते हैं एक नहीं है वो हजारों लाखों करोड़ों हैं जो जिनका ट्री कटिंग से इकोनॉमिक चलता है जिनका बहुत कुछ है जिनका इंडस्ट्रीज है तो वो सब लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ग्रो करना है डेवलपमेंट करना है बड़े बड़े ब्रांच बड़े बड़े फ्लाईओवर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ठीक है क्योंकि वो उसी से ग्रो करते हैं वो मिलियनियर बिलियनियर और मल्टी मिलियनियर बनते चले आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ग्रो करते रहें ठीक है बड़े बड़े फॉरेस्ट को बड़े से बड़े जंगल को मिनटों में काट के वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम बनाने को तैयार है वो रेडी है उनके पास इतनी कैपेसिटी स्किल्स है उनके पास कहीं पे उनको बस हाथ से सारा कर दो ये जंगल है इसको काट के स्टेडियम बना दो कल वो स्टेडियम बन जाएगा वहां पे IPL मैच हो रहा होगा ठीक है और बहुत फास्ट हो जाएगा चाइना और कोरिया में तो बहुत ज्यादा फास्ट बन सकता है कुछ भी तो इस तरीके से ये लोग हैं तो इन दोनों के बीच में डिबेट होती है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है हम प्रेजेंट नीड को कितना फुलफिल करें किस तरीके से करें तो इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश की और जो डिबेट हो रहा था ना क्योंकि डिबेट अगर हम वहाँ पे इजीली अगर वो ये लोग अगर चुप बैठ गए तो वो इजीली फिर लॉ बन जाएगा लॉ बनने का फिर सबको मानना पड़ेगा पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वालों ने अगर सही टाइम पे अगर वॉइस रेज की होती तो दिल्ली में प्लास्टिक बैन नहीं होता ना Yes, sir. सबको मालूम है नहीं मालूम है ये इसी इसको Yes, sir. बताइए अगर ये बताइए प्लास्टिक क्या कम्प्लीटली बैन है No, sir. ये प्लास्टिक तो अभी भी यूज करते हैं लेकिन उस Yes, समय sir. फॉर एग्जांपल मेरी एक प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री थी या फिर प्लास्टिक से बहुत सारे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेके प्लास्टिक का बहुत सारा काम था बट अब वो प्लास्टिक बैन होने से इम्पैक्ट हुआ ना मेरा इंटरेस्ट तो इम्पैक्ट हुआ ना जी ठीक है तो आप में से पता होगा कि प्लास्टिक पर डिबेट बनता है फिर प्लास्टिक की अवेयरनेस निकाली जाती है पॉलिथीन बैन करो ये करो उसके बाद फिर हम जैसे जो करोड़ों रुपए का पैसा लगा करके प्लास्टिक की पॉलिथीन बना रहे हैं और मार्केट में एक सप्लाई कर रहे हैं नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक आप यूज करो क्योंकि आपकी नीड है प्लास्टिक इसलिए आप उसको यूज कर रहे हो अदर उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है नहीं इसलिए तो लेकिन फिर धीरे धीरे वो करके जाके प्लास्टिक बैन करके कानून बन गया अब हम बड़े लोग तो नहीं कर पा रहे कुछ हमारा तो सारा लॉस हो गया लेकिन कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं वो अपने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वो सप्लाई भी हो रहा है और दिल्ली में बराबर सब्जी लेने जाओ कुछ लेने जाओ तो आपको प्लास्टिक में मिलता है वो थोड़े पेपर बैग या जूट बैग या कोई नॉर्मल बैग यूज करते हैं अदर देन तो ये सब चीजें इसलिए ये सारी डिबेट वगैरह का पार्ट बनता है इसलिए यहाँ पर हम ये काम करते हैं ठीक है एवरीवन आप में से किसी को डाउट हो क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं यस आगे हम रीड करेंगे आप में से कोई स्टूडेंट आए और आप में से कोई भी वॉलंटरी कोई भी स्टूडेंट आ सकता है रीड करने के लिए Sir, may I read? पूजा आपने भी रीड किया था ना Yes, sir. हाँ कोई और ये कशी जी को बोलते हैं ठीक है Okay, sir. आप एक्सप्लेन कर सकते हो यस कशी जी यहाँ से रीड करना है The concept of sustainable development
आपकी वॉइस थोड़ी सी लो आ रही है जी, आप बोलिए थोड़ा कैसे जी। The concept of sustainable development से जी जी यस। okay. The concept of sustainable development is now well accepted at international, national, and local levels. This has been emerging as a strong alternative model of development after a long debate and discussion since Rio Summit in 1992. Sustainable development means different things to different people. There are three important disciplines traditionally concerned with the processes involved in conceptualizing sustainable development. The discipline of economics is mainly concerned with growth, efficiency, and the optimum use of resources. On the other hand, sociologists mainly focus on human needs and on concepts like equity, empowerment, and social cohesion. Ecologists show their greatest concern for preserving natural system for सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है, एक सेकंड। और लास्ट लाइन पढ़ लिया आपने, ये लाइन पढ़ ली? यस सर ओके जी। यस यहाँ से पढ़ेंगे। एक सेकंड, प्रियांशी जी को मैं बोलता हूँ पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें कुछ पैरा सेपरेट है तो। यस, कोई और स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कर सकता है? Yes, sir. जी। The concept of sustainable development is now well accepted at international, national and local level. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अब वो एक्सेप्टेड कर लिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल पर और लोकल पर. It has been emerging as a strong alternative models of development after a long debate and discussion since Rio Summit in 1992. 1992 की बहस के बाद इसको मान लिया गया है. ये मतलब काफी डेवलप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए सबका अलग है. These are three important disciplines traditional concerned with the process involved the completing sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 टाइप्स हैं. मतलब पहले से चले आ रहे हैं. The discipline of economics is mainly concerned with growth, efficiency and the optimum use of resource. मतलब इसका एक डिसिप्लिन है जो सबसे पहला है कि उसकी जो ग्रोथ है, एफिशिएंसी है और सर ऑप्टिमम का मीनिंग. हाँ जी, ऑप्टिमम का मीनिंग ऑप्टिमम होता है मैक्सिमम. अगर मान लो जैसे आप क्लास कर रहे हो, अभी किसी ने पलक जी ने बोला था कि क्लास करते हो, पलक जी ने कहा था कि 7 बजे करके 7:30 करते हो, लेकिन 7 से 7 के बीच में क्या हुआ, तो ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे ना हम क्लास को. ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज जब हम करते हैं ना तो होता है. किसी भी रिसोर्स को भी, जैसे हम पेपर, आप अखबार आता है तो अखबार क्या करते हो, रीड करते हो फिर फेंक देते हो. लेकिन मैं क्या करता था, अपने स्कूल का कवर का बैग बना लेता, मतलब मल्टीपल यूज करके, मतलब कैसे भी ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम को यूज, उसको यूटिलाइज करना किसी चीज को. ठीक है. On the other hand, psychologists mainly focus on human needs and on concepts like equality, empowerment and social cohesion. मतलब और दूसरी तरफ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेन फोकस करते हैं कि ह्यूमन नीड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक क्वालिटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल कॉन्सेप्ट. इकोलॉजिस्ट शो their greatest concern for preserving natural system for जी. अभी अर्थशास्त्र जो है जी, अभी कौन स्टूडेंट आगे रीड करेंगे? अपने हैंड रेज कर सकते हैं. यस प्लीज. सब भारती सिंह है.
जी गुड मॉर्निंग भारती जी, आप यहाँ से रीड करेंगे। कहाँ से करना है सर रीड, आप बताइए। यहाँ से। आता नंबर 1992 सस्टेनेबल वेट एक सेकंड। सर इकोलॉजिस्ट से करना है, नीचे सर नीचे। इकोलॉजिस्ट यस ecologists show their greatest concern for preserving वन सेकंड, यहाँ ये ना कुछ natural system for ठीक है जी, हाँ रीड करें। living within the ecologists show their greatest concern for preserving natural system for living within the carrying capacity of the environment and for dealing efficiently with pollution. Today, this certain approach to development adopted by the above mentioned disciplines have been rejected. Now, it has been argued that sustainable development will be achieved where the concerns of these three groups are addressed in a holistic manner as shown in figure 1.3. जी अभी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं प्रियांशी जी। एक सेकंड मैं आपको बनाता हूँ, क्या आप इजीली अनम्यूट कर सकते हैं? यस प्रियांशी जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सस्टेनेबल का जो मतलब है वो है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट थिंग, different काम. There are three important disciplines traditionally concerned with the process involved in conceptualization. उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 3 important principles है जो कंसर्न किए गए हैं उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व किए गए हैं इन conceptualization sustainable development में इन्वॉल्व किए गए हैं उसके 3 important disciplines. The disciplines of economics is mainly concerned with growth. जो डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स के वो मेनली किस पे कंसर्न कर रहे हैं? ग्रोथ पे, एफिशिएंसी एंड द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं रिसोर्सेज को। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजिस्ट मेनली फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स एंड ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल कोहेशन। और दूसरे हाथ पे जो सोशियोलॉजिस्ट है जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं उन्होंने मेन फोकस किस पे किया है? ह्यूमन नीड्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे इक्विटी मतलब एक जैसा, एम्पावरमेंट एंड सोशल कोहेशन। इकोलॉजिस्ट शो देयर ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल सिस्टम। और जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना जो कंसर्न है, जो ग्रेटेस्ट कंसर्न है, उन्होंने उस पे दिखाया है नेचुरल सिस्टम को प्रिजर्व करने में, बचा के रखने में। फॉर लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, और क्या बोलते हैं जो कैपेसिटी है इन्वायरमेंट में उसको लेकर उन्होंने प्रिजर्व किया है। एंड फॉर डीलिंग एफिशिएंटली विद पॉल्यूशन, और उन्होंने पॉल्यूशन के साथ भी एफिशिएंटली बिल्कुल एफर्ट लगा के डील किया है। Today, this sectarian approach to development adopted by the above mentioned disciplines have been rejected. जो सेक्टेरियन अप्रोच थी जो हमने ऊपर डेवलपमेंट के बारे में अडॉप्ट की थी, जो ऊपर मेंशन की गई, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। Now it has been argued that sustainable development will be achieved. अभी आर्ग्यू होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अचीव किया जाएगा where the concerns of these 3 groups are addressed in a holistic manner. जो ये ऊपर 3 ग्रुप्स बताए गए हैं जब इनको हम होलिस्टिक मैनर में एड्रेस करेंगे, और ये शो किया गया फिगर 1.3 में। जी तो आपने इसमें जी तो आपने इसमें क्या पढ़ा है? तो 3 ग्रुप पढ़े, डिसिप्लिन पढ़े, Yes. इकोनॉमिक पढ़ा, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा आपने? इकोनॉमिक क्या बताता है? मेनली ग्रोथ, एफिशिएंसी और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स के बारे में पता है। दूसरा सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, मेनली फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स वगैरह के बारे में, ठीक है, एम्पावरमेंट एंड सोशल कोहेशन के बारे में, ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स और इस तरीके से चीजें हुई। और इसको हम एक बार देख लेते हैं। जो जी, these are the 3 pillars of sustainable development: environment, social and economic। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है,
इसमें इकोनॉमिक मतलब होता है अर्थ से संबंध, अर्थ मतलब पैसा, इनकम, रोजगार, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब से है। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आप कहते हो स्कूल जाना है, और फिर अच्छा जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्कूल जाके करोगे, तो पढ़ाई स्कूल में ट्रांसपोर्ट में ही आपका आप कोयल या जो पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह यूज कर रहे हो आप, तो इसका मतलब आप रिसोर्स को विदाउट यूज किए इग्नोर, मतलब कंप्लीटली ऐसे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप एजुकेशन ले रहे हो तो कितना छोटा एग्जांपल है, आप स्कूल जा रहे हो, वहां पे भी आप इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप जिस व्हीकल में जा रहे हो, है ना, अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हो या बाय वॉक करके जा रहे हो, अदरवाइज आप रिसोर्स को यूज कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट, ये सब और कुछ है। ठीक है, कम्युनिकेशन लिखा है लास्ट वर्ड। और यहाँ पे है आपका फुल, ये आपके अगर बुक में भी देख सकते हो आप, फुल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लायबिलिटी रेगुलेशंस। तो ये इन्वायरमेंटल में क्या होता है, इसको अकाउंटेबिलिटी बना रहे हैं। इसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब सोशल नीड्स वगैरह है हमारे। और हमारा क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब कर रहे हैं। एयर, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, मिनरल्स, एनर्जी, ये सारा इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो आपने एक नॉर्मली देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमें किस चीजों के बारे में टॉपिक, हमारे पास 3 टॉपिक हैं, 3 पिलर है। कौन कौन से 3 टॉपिक है हमारे पास, इकोनॉमिक है, सोशल है एंड इन्वायरमेंट है। तो जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट पे को भी हमें वो करना है, सॉरी, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इकोनॉमिकली हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी ये सारी चीजें होंगी, प्रोडक्शन होगा, देखो प्रोडक्शन होगा, ये सब चीजें होंगी। डेवलपमेंट मतलब यही तो है, हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। डेवलपमेंट मींस क्या है, प्रोडक्शन होना, प्रोसेसिंग होना, मार्केटिंग होना, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होना, इन्वेस्टमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये सही चीज डेवलपमेंट है। सोशल्स में हमें नीड्स, हमारी सोशल नीड्स है, ये सारी चीज फुलफिल होगी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। बट इन सब चीज को करते हुए हमें क्या करना है, इसके सेंटर में क्या है, सेंटर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट। कोई और इसको अच्छे से बता सकता है, कोई और कुछ अपने वर्ड्स इसमें ऐड करना चाहता है या कुछ और? यस, पूजा जी, किसी ने कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किसने स्टूडेंट ने रीड करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं जी। ये चंचल जी। बड़े सर, जी, it has been said that sustainable development is an ideal which no societies today have achieved anything resembling it. Nevertheless, as resources, equality and freedom, it is important to uphold sustainable development as an ideal, a goal toward which all human societies need to be moving. For example, policies and action that reduce infant mortality, increase the availability of family planning, improve the air quality, provide more abundant and pure water, preserve and protect natural ecosystem, reduce soil erosion, and reduce the release of toxic chemicals to the environment. All move society is the right direction toward a sustainable future. To achieve this desired goal, societies have to make certain transitions which are very much essential. There is a broad conscience on the following transition to make future societies. A demographic transition from a continuously growing population to one that is stable. A resources transition to any economy that is not slowly obsessed with growth, rather relies more on nature, income, and protects ecosystem capital from depletion. A technological transition from pollution-intensive economic production to environment-friendly processes. A political psychology transition. A community transition. Priority areas for achieving sustainable development. First, slow down population growth. This is essential for addressing all the other priority areas. Reduce poverty, inequality, and third, world debt. Improving. यस Yes, sir. जी, चंचल जी एक सेकंड में, पहले इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी
पैरा टू पैरा पढ़ेंगे ना तो ज्यादा लोग समझ को पाएंगे। यस प्रियांशी जी। Yes, sir. जी। It has been said that sustainable development is an ideal which no societies today have achieved anything resembling it. ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक आइडल है जिसके पास एक भी सोसाइटी नहीं है आज की उसमें, क्योंकि उसे कोई अपना नहीं रहा है. Nevertheless, as with justice, equality and freedom, it is important to uphold sustainable development as an ideal. ये कह रहे हैं कि nevertheless मतलब हमें as a justice उसको equality and freedom अपहोल्ड करना, अपहोल्ड मतलब पकड़ के रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक आइडल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है. और ह्यूमन सोसाइटी की तरफ उसको उसका गोल टूवर्ड उसकी तरफ करना कि वो उसको अपना सके और उसको आगे लेके जा सके. फॉर एग्जाम्पल, policies and actions that reduce infant mortality, increase the availability of family planning. जो policies और action है उन्होंने infant mortality को reduce कर दिया. mortality I think सर mortality का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी तो बच्चों की, छोटे बच्चों की मृत्यु दर को बोलते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी किसको बोलते हैं, कोई और स्टूडेंट बताएगा? इन्फेंट, यस प्रियांशी जी. चंचल जी पता है आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चों की मृत्यु दर? सर नहीं पता. अच्छा सर आई थिंक डेथ रेट. इन्फेंट लगाया हुआ. हाँ मोर्टेलिटी, अगर आप सिर्फ मोर्टेलिटी बोलते हो तो यस डेथ रेट हो सकता है, बट यहाँ पे हम इन्फेंट मतलब सर छोटे बच्चों की. हाँ कोई और स्टूडेंट कंफर्म कर सकते हैं थोड़ा सा, कई बार हम. जी चलिए कंटिन्यू कीजिए आप. increase the availability of family planning. इसने reduce किया है infant mortality को और increase किया है availability of family planning. available किया है family planning को. improve the air quality, उसने air quality को improve किया है. provide more abundant and pure water, उसने एक abundant pure water provide किया है. preserve and protect natural ecosystem, preserve किया, बचा के रखा और protect किया है natural ecosystem को. reduce soil erosion, जो soil erosion होता है उसको भी reduce किया है. and reduces the release of toxic chemicals to the environment, और जो toxic chemicals फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं उसका रिलीज करना भी reduce किया है. all move with society in the right direction toward a sustainable future. जो पूरी सोसाइटी है वो एक right direction में जा रही है और towards किसके जा रही है? sustainable future की तरफ जा रही है. To achieve this desired goal, society have to make certain transition. ये desired जो goal है इसको हमें achieve करने के लिए society को मतलब थोड़े transition करने पड़ेंगे which are very much essential, जो कि बहुत important है करने. There is a broad consensus on the following transition to make future societies. कुछ एक broad consensus हैं जो कुछ points हैं transition करने के लिए जो future society को करने चाहिए. First point, a demographic transition from a continually growing population to one that is stable. demographic मतलब जो एक जो population है वो continue grow कर रही है उसको stable करना बहुत important है. A resource transition to an economy that is not solely obsessed with growth, rather relies more on nature's income and protects ecosystem capital from depletion. जो economy है that is not solely obsessed with growth, जो growth से obsessed नहीं है, जो क्या बोल सकते हैं, obsessed नहीं है, rather relies more on nature's income, जो ये realize करते हैं कि जो nature की income है and protect ecosystem capital from depletion. और हमें ecosystem से हमें इकोसिस्टम को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डिप्लीशन, उसको खराब होने से. सर हो गए. A technological transition from pollution intensive अभी economic. ये रीड हो गया था जी. नो सर. हाँ कोई स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट कोई आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर, रीड करेंगे. यस भूमिका जी. Yes, sir. Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग. Okay, sir. Can I start reading? यस. Okay, sir. A technological translation from pollution intensive economic production to environment friendly process.
a political, sociological in transition, a community transition priority assess for achieving sustainable development. Slow down population growth. This is essential for addressing all the other priority areas. Reduce poverty, inequality, and third world debate. Improving health, longevity, and literacy, increasing employment, etc. This is important for curbing the loss of species, the extent of land degradation, water pollution, make agriculture sustainable. The includes education. Includes reducing soil and erosion and decreasing the use of harmful agriculture particles. This is important for curbing the loss of biodiversity and land degradation and pollution. Yes. Yes. Priyanshi, can you explain this? Yes, sir. A technological transition from pollution intensive economic production to environment friendly process. जो pollution है उसको हमें कम करना चाहिए और जो हमारे environment है उसकी तरफ हमें थोड़ा friendly process करना चाहिए. A political और sociological transition, और हमें political transition भी करना चाहिए और sociological transition भी करना चाहिए. So political से इसका meaning है मतलब राजनीति की तरफ से. जी, पॉलिटिकल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. हम पॉलिटिकल क्या होता है, रिसोर्स के ऊपर पॉलिटिक्स होता है ना, आपको पता होगा, जैसे जंगलों के ऊपर, पानी के ऊपर. इवन आपने अभी सुना है रिसेंटली जो समुद्र है, इंडियन ओशन है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि भाई चाइना उसको यूज करेगा या हम यूज करेंगे, है ना. श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी लड़ाई होती है मछली को लेकर के कि ये मछली हमारी है. वो कहते नहीं, हम फिशिंग करते हैं ना, आपको मालूम है, फिशर्स पकड़ लेते हैं. पॉलिटिकल. जी कुछ नहीं सर. हाँ, हमने श्रीलंका के 40 फिशर पकड़ लिए, श्रीलंका ने हमारे 20 फिशर पकड़ लेते हैं. वो मछली पकड़ते पकड़ते उधर चले जाते हैं और उधर के लोग मछली पकड़ते पकड़ते समुद्र के अंदर हमारे पास आ जाते हैं. तो वो एक रिसोर्स है. अब देखो, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा रिसोर्स है, इतना बड़ा समुद्र, इतना ज्यादा मछलियां आ रही हैं, तो वो ऐसा, लेकिन बाउंड्री भी क्रॉस कर जाते हैं. ऐसे समुद्र के अंदर बहुत सारे रिसोर्स है. तो बात हो गई समुद्र की. ऐसी बहुत सारी स्टेट भी आपने देखा होगा, नेपाल और इंडिया के बीच में वाटर का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको पता होगा, है ना. तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के बीच में से ब्रह्मपुत्र का कौन सी नदी है जो पाकिस्तान जाती है ना. तो बहुत सारे रिवर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि इतना फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए मिनिमम, ताकि वाटर ही सबसे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ड्रिंकेबल वाटर जो होता है. इसी प्रकार से रिसोर्स के ऊपर भी पॉलिटिक्स होती है. जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो डिस्कशन होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है, तो काफी लोगों को डर लगता है कि अगर ऐसी चीजें के बारे में अभी जैसे कुछ थोड़ा सा कोरोना या लॉकडाउन का डिस्कशन हो जाए तो काफी लोग घबरा जाते हैं. कोरोना से तो सब प्रभावित हैं, लेकिन काफी जो लोग रिटेलर्स होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं, वो लोग थोड़े से डर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है इम्पैक्ट होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल से रिलेटेड है. जैसे पॉलिथीन बैन कर दिया तो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, नहीं था डिसीजन? यस सर. जब अवेयरनेस के लिए जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो वो हमारा होता है सोशल या एनजीओ करते हैं. लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन क्या होते हैं कि पॉलिथीन को बैक कर देना. आपको पता है उत्तराखंड में लेदर बैन हो गया था, तो एक बार बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ने मतलब परेशान हो गए थे. लेदर कई जगह ना, उत्तराखंड हमारा देवभूमि बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं, तो लेदर इंडस्ट्रीज को बैन किया गया था अलग अलग स्टेट में. कहीं पे हम पॉलिटिकल डिसीजन पे वो लिकर भी बैन कर देते हैं. लिकर होता है ना, अल्कोहल वगैरह, तो बिहार में बैन है, गुजरात में बैन है, इस तरीके से. ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं. तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पॉलिटिकली डिसीजन हो सकते हैं. यस, आगे मूव कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू. कम्युनिटी ट्रांजिशन जो हमें अलग अलग जो कम्युनिटी होती है उनमें भी ट्रांजिशन की जरूरत है. प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज है, जो जिन्हें हमें यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है. फर्स्ट, स्लो डाउन पॉल्यूशन ग्रोथ. दिस इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग ऑल. सॉरी, आपने पॉल्यूशन बोला. Sorry, population growth. This is essential for addressing all the other priority areas. हमें जो population growth है उसको slow down करना चाहिए. ये priority area में बहुत essential है ये. Reduce poverty, inequality and third world debt.
improving health, longevity and literacy, increasing in employment etc. हमें अपनी health को improve करना चाहिए, उसको longevity बनाना चाहिए, literacy और increasing employment हमें increase करना चाहिए. This is important for curbing the loss of species, the extent of land degradation एंड वाटर पॉल्यूशन. जो ये इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि उसकी वजह से हमें स्पीशीज लॉस नहीं होगा, एक्सटेंट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन का एक्सटेंट हो रहा है वो नहीं होगा, एंड वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा. थर्ड, मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल. हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना चाहिए. दिस इंक्लूड्स रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. ये इसमें हमें सॉइल इरोजन को रिड्यूस करना चाहिए, एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और जो हम एग्रीकल्चर करने के लिए जो हम उसमें केमिकल वगैरह जो डालते हैं, उसको यूज करना भी हमें रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कर्बिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, उसका लॉस कम हो, लैंड डिग्रेडेशन का लॉस कम हो, और पॉल्यूशन का लॉस जो है वो कम हो. जी जी, थैंक यू. अभी हम यहाँ पर जो है अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, देन हमारी एक नेक्स्ट क्लास है, तो अभी हम इसको क्लास को हमें स्टॉप करना होगा. टुमारो यू कैन ज्वाइन विद द सेम लिंक्स. जो भी स्टूडेंट, अगर नए स्टूडेंट कोई ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग कल सेम हमारे 7 बजे इसी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम टाइम पर. थैंक यू एवरीवन.